Okay, children. So the topic which we are discussing today, it is what are different types of plans. The concepts of planning, its features, importance, and limitations that we have already covered. Yesterday we finished the topic of process of planning. Today we are going to discuss what are different types of plan, and broad classification of planning says that there are two types of plans. One is standing plans. Standing plans are the plans which are repeatedly used. Repeatedly used means the plans are once made and then they are used again and again. For example, rule. A rule is made once and then the same rule is being followed year after year. Okay? For example, we are preparing our books of accounts on the basis of accounting year. 1st April till 31st March, we are making the books of accounts. So are we going to change it next year? No, we are going to follow the same procedure again and again and again. Okay? Similarly, there can be one more example. You are running a school and the procedure of admission in the school, is it going to change? It will be same. For example, the procedure is same from past 10 years. That child who want to get admission in the school, he is supposed to buy the prospectus. Then he will fill the admission form. Then he has to appear for some entrance test. After passing that entrance test, he has to pay the fee and then he will get admission in the school. So this procedure will remain same. ऐसा तो नहीं होगा कि once is initially he will start attending the class and then he will fill the attendance form and then he will appear for the exam. No. So there is a set sequence of steps which are to be followed and these steps are not going to change. This procedure is not going to change. So this procedure is a type of standing plan. I have written these are the plans which are used again and again. On the other hand, we have single used plans. As the name suggests, single use plans means which are one time used plans. They have to make new plan every time. For example, we are planning a function, any function, for example, annual day function I am planning. So I need to make a procedure or the program set of items. Pehle ye hoga, welcome hoga, and then this and this and this. So all the sequence of activities for this annual day will be, for example, one set of like menu I have made, sequence of activities, and for the next time, after 1 month, I have to arrange for sports day event. For the sports day event, can I keep all the items same as I have kept in annual day? No, I need to change the whole procedure. I need to change the whole sequence of activities. I need to make a new fresh plan for this new event. So this is what is called as but single use plan. Single use plan means which is used only once. I have written the example of budget because every time, every year, for all the actions or activities or all the programs, we need to set a new budget, right? So these are the broad classification. Under these classification, we have different types of plans. So first of all, we are, or you can write it in one line. Please note it down. Single use plan की definition लिख लीजिए. छोटी सी, it's not definition, it's meaning of single use plan. Please write it down. Single use plans are one time use plans. These are the plans which we have to use only once and then we need to change it. These are designed to achieve a particular goal. जो भी हमारा particular goal होगा उसको achieve करने के लिए बने हैं ये. To achieve a particular goal which is non-repetitive in nature. Non-repetitive. Spelling लिख दूं आपको. Non-repetitive. Non-repetitive means which is not going to repeat itself. ऐसी किसी सिचुएशन में जो हम प्लान बनाते हैं वो सिंगल यूज प्लान होता है. और मोस्टली सिंगल यूज प्लान जो है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं. जैसे आज एक इवेंट है, 4 घंटे का फंक्शन है, उस 4 घंटे के फंक्शन के लिए जो भी प्रोग्राम मैंने बनाया दैट इज अ सिंगल यूज प्लान. और आई एम टेकिंग पार्ट इन सम एक्टिविटी, रेस करनी है मुझे, रेसिंग ट्रैक पे मैं खड़ा हूँ. At that time, what strategy I will make for that particular day and with that particular situation, it is a strategy that is again a single use plan. कल मेरी कोई और एक्टिविटी है या कल मेरा कोई और कंपटीशन है
तो क्या रेसिंग में जो मैंने स्ट्रेटेजी लगाई वहां लगेगी? नो, आई हैव टू चेंज माई स्ट्रेटेजी. फुटबॉल मैच में न्यू स्ट्रेटेजी आई नीड टू मेक. If I am going for cricket match, I need to make a new strategy. If I am going for racing, running, I need to make a new strategy. So this is also a single use plan, which is for short time period. So this is homework for you all. You are supposed to write difference between standing plans and single use plans. Okay? You are supposed to write difference between the two, and answer for the same I will send you tomorrow. Today itself you are supposed to think out of the box, as I have told you earlier. You can check into the book, but don't just copy and paste. थोड़ा सा अपना ये वाला हिस्सा यूज किया करिए, थोड़ा सा एफर्ट करा करिए, so that you are able to like think on some new lines. Don't go where the path may lead, go where there is no path. सुना है ना आपने? So this is what it means. It doesn't mean कि okay, Kannav, you want to say something? Yes, बेटे. मैम I'm having a question. मैम जैसे कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट करती है, प्लान वगैरह करती है, उसके पहले उसके ट्रायल्स होते हैं, मैम वो किसके अंडर आता है, सिंगल यूज प्लान के अंडर या स्टैंडिंग प्लान के अंडर? पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है वो चेंज होती रहती हैं, अगर तो फिर वो बेसिकली जो पॉलिसी हम बनाई जाती है, हम लोग बनाते हैं, पॉलिसी इज समथिंग विच इज टू बी यूज्ड इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसको स्टैंडिंग प्लान समझते हैं, बट वी नो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी नीड टू चेंज इट, so it is sometimes come under standing plan, sometimes comes under single use plan, so it is not exactly any of the two types. ठीक है? कोई ऐसी भी आइटम होती है जैसे यस मैं क्वेश्चन वो जैसे स्मॉल स्केल पे उसका ट्रायल कर रहे हैं, जैसे जीएसटी आया उसका स्मॉल स्केल पे ट्रायल हुआ था, तो मैं वो किसके अंडर आता है? वो पॉलिसी थोड़ी थी बेटे, वाज इट अ पॉलिसी? नो मैम. हाँ, वी आर टॉकिंग, देखो वो तो अगर आप किसी एक्टिविटी या इवेंट की बात कर रहे हो, वो तो हमारे प्लानिंग के प्रोसेस में हमने कल पढ़ा था कि देयर आर सम ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट एनालाइज करती है सारी ऑप्शंस को. इफ वी आर पुटिंग समथिंग इन ट्रायल, इट मींस वी आर एनालाइजिंग द ऑप्शंस. कल पढ़ा था ना प्रोसेस में. सो अगर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, हम तीनों ऑप्शंस को ट्राई करेंगे, एंड देन इफ वी आर मेकिंग अ डिसीजन, देन इट इज समथिंग एल्स, दैट इज on the way of planning. We are just deciding what is to be planned, because once a plan which is being made, that will go on for a longer period of time. So that is the reason why it is not yet like वो एक ऐसा प्लान है जो भी बना ही नहीं. ठीक है जी? ओके, सो पहली चीज आपको क्लियर होगी. अब कुछ कुछ वर्ड्स मैं यूज करने जा रही हूँ जो आपने बहुत बार सुने होंगे आपको, लेकिन उनके मीनिंग शायद एग्जैक्टली ना पता हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. टाइप्स ऑफ प्लान बताने जा रही हूं मैं. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. Now I have already told you yesterday what is the meaning of objective. Can any one of you please repeat? Any one of you please raise your hand. There is only one child who is ready to answer. Rest all of you are sleeping. Okay. Okay, so I got 4 children raising their hands. Sanya, you can answer, baby. Sanya. Ma'am, objective means what we want to do at a particular point of time, means right now what we want to do. In a particular time period में what we want to achieve is the objective, and this is for a short period of time, and this is what will bring us to the ultimate goal. I told you yesterday, please write it down. थोड़ी थोड़ी इसकी definitions आपको लिखनी पड़ेंगी. 5-6 types की plans हैं, but they are very important. 3 mark में question, sure short question है, आता ही आता है. तो please write objective. Objectives are the goals, aims or purpose that organization wish
to achieve, that organization wish to achieve over a particular period of time. ठीक है जी, डन है। इसके आगे लिखिए, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल इन दी 1 मंथ, अपकमिंग 1 मंथ, व्हाट वी वांट टू अचीव, वी वांट कि हमारी 3 सेल्स हो जाए, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ इसका थोड़ा सा आइडिया आपको दे रही हूँ। द अदर्स आर डिपार्टमेंट वाइज भी होती है, बट आवर डिपार्टमेंट वांट टू अचीव इन दिस 1 मंथ और 1 ईयर, so that is departmental objectives. The third one are individual objective. Departmental objective clear हो गया, and then individual objectives. डन है बेटे। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव, तीनों क्लियर है। इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव हो सकता है मुझे टोटल इतनी आउटपुट बनानी है इंडिविजुअल के लिए। वो ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि आपको फोरमैन ने दिया हो, आपके हेड ने दिया हो कि ऑल द एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू मेक 20 पीसेस पर डे, फॉर एग्जांपल। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव मींस पूरे डिपार्टमेंट को इतने टाइम में इतना अचीव करना, दैट इज डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक इसमें और लिखिए, एक लाइन, द ऑब्जेक्टिव शुड बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेग कभी भी नहीं सोचना। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कल आपने भी मुझे यही बात डिस्कस करी थी कि जो प्लानिंग हम करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव भी जो हमने अचीव करना है, लिखिए, द ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट इन क्लियर, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स। ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो। The objective should be set in clear, specific and measurable terms and should be time bound. साथ में ये भी बताया हो कि कितने टाइम में अचीव करना है उसको। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, an automobile company has the objective to increase the sale, has the objective to increase the sale by 10%, in next 3 months. तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है और क्लियरली हमें बता दिया कितनी सेल बढ़ानी है, 10%, कितने टाइम में बढ़ानी है, इन 3 months. सो दिस इज अ क्लियर सेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। सो व्हाट यू से, ऑब्जेक्टिव सेम रहता होगा कि चेंज होता रहता होगा? शॉर्ट टर्म के जो ऑब्जेक्टिव है वो तो चेंज होते जाएंगे। 3 मंथ में ये अचीव किया, फिर अगले 3 मंथ में नया बनाएंगे। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव बनाया, जैसे 2 इयर्स का, तो ऑब्वियसली 2 इयर्स तो वो सेम ही चलेगा फिर, लाइक दैट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, स्ट्रेटेजी। ऑब्जेक्टिव सबको पता चल गया ना क्या है बेटे? आई वांट यू टू गेट द मीनिंग क्लियर। द अदर वन इज स्ट्रेटेजी। This is, I think, something I asked you yesterday also. What is the meaning of strategy? Strategy means which you are making on the spot for some particular, like to cope up with the particular situation when you are making a plan. This is called as strategy. For example, आप अपनी कंपनी चला रहे कोल्ड ड्रिंक की, आपके कॉम्पिटिटर ने एक न्यू कोल्ड ड्रिंक लॉन्च की और आपका सारा कस्टमर जो था, आपका कस्टमर बेस, वो आपके कॉम्पिटिटर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब ये आपके लिए एक सिचुएशन है। You want to overcome from this situation, you want to come out of this situation. What you will do?
You will make a strategy. You will make a strategy to cope up with this situation, not right now, like in long run. So what you will do, maybe आप भी एक नई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करने का प्लान बनाओ, मे बी आप अपनी पुरानी कोल्ड ड्रिंक्स में कुछ टेस्ट में चेंज लाओ, उसको कुछ मॉडिफाई करो, मे बी आप कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर दो कस्टमर को, ताकि आपका कस्टमर आपकी तरफ ही रहे। ठीक है, जैसे कंपनीज करती हैं, कोको कोला, पेप्सी, ये सब, थम्स अप, व्हाट दे यूज्ड टू डू, जब क्रिकेट आने वाला होता है कि आपको टिकट मिल जाएगी, वर्ल्ड कप देखने जा सकते हो, आपको आजकल लोग एमबी को लेके, इंटरनेट पैक को लेके बड़े क्रेजी होते हैं, तो आपको 10 MB 1 GB मिल जाएगा, इंटरनेट फ्री मिल जाएगा कोल्ड ड्रिंक के अंदर, कैप को खोलो तो उसके अंदर से गिफ्ट निकलेगा, लाइक दैट। So these are basically the strategies on the sales promotion techniques which company is using in the time when the environment is inverse। ठीक है, चलिए लिखिए इसके बारे में। स्ट्रेटेजी के आगे लिखिए, स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान which helps in achievement of ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे हमने अभी ऑब्जेक्टिव का एक एग्जांपल ली कि एक कंपनी है जिसको अपने 3 मंथ में सेल 10 टाइम्स बढ़ानी है, तो सेल को बढ़ाने के लिए कंपनी को क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी ना स्ट्रेटेजी। तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी आप एक डिटेल प्लान बनाते हो कि क्या आप फ्री में कुछ दोगे, कोई ऑफर लॉन्च करोगे, या आप शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लोगे, या फिर आप कार के साथ कुछ फ्री गिफ्ट देने लग जाओगे, कार के साथ आप बोलोगे कि 2 years की सर्विस फ्री है, या whatever you will take a decision, whatever you will think, whatever you will make a comprehensive, मतलब डिटेल प्लान जो बनाओगे, that will be your strategy to cope up with the situation। ठीक है, चलिए इसके अंदर और लिखिए, the 3 aspects involved। इसके अंदर 3 तरह के, मतलब 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है जब हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लिखिए, the 3 aspects involved in formulating a strategy are, स्ट्रेटेजी को बनाने में 3 एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं। what are those 3 aspects? Number 1, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को भी डिटरमाइन करते हैं साथ में कि इसके करने से क्या होगा लॉन्ग रन में। नंबर 2, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि हमने कौन सा एक मेथड फॉलो करना है, एंड देन वी आर गोइंग टू फॉलो द मेथड अगेन और नॉट, वो भी। एंड द थर्ड वन इज एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज कहाँ पे लगाने हैं, कहाँ पैसा वेस्ट करना है, कहाँ पैसा बचाना है। सो एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो 3 चीजें हमें स्ट्रेटेजी में देखनी पड़ती हैं। नंबर 1 कि जो हम स्ट्रेटेजी बनाए वो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट कर रही है। नंबर 2, कौन सा मेथड, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करने वाले हैं। नंबर 3, how much resources we are going to devote to one particular activity and the other activity। ठीक है, ठीक है जी। चलिए एग्जांपल में लिखिए स्ट्रेटेजी की, फिर बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्ट्रेटेजी के एग्जांपल में लिखिए, फॉर एग्जांपल, आफ्टर द हैपनिंग ऑफ devastated floods, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ स्पेलिंग आपको। devastating floods, devastating होती है जिस चीज से मतलब आप पूरा तहस नहस हो जाए, कोई चीज खराब हो जाए एकदम। तो हमारे फ्लड्स आए थे कहाँ पे, केरला में। एग्जाम्पल में वही हम ले रहे हैं, आफ्टर द हैपनिंग ऑफ devastating floods इन केरला। केरला टूरिज्म वाले चाहते हैं कि हमारे केरला में लोग वापस आए, सब कुछ खराब हो गया, उनकी नेचुरल ब्यूटी भी खराब हो गई, सो स्टिल दे वांट कि टूरिस्ट वापस आए हमारी स्टेट में। आफ्टर द हैपनिंग ऑफ डेवास्टेटिंग फ्लड्स इन केरला,
Kerala tourism has made a 12-point action plan. Kerala tourism had made a 12-point action plan to bring the tourist back to the state. ठीक है जी. So this is the strategy. उन्होंने 12 points का एक वो बनाया एक्शन प्लान, ताकि टूरिस्ट हमारा वापस आए जो चला गया है. फ्लड्स के कारण लोगों को लगता है केरला में कुछ नहीं बचा, हमने नहीं जाना घूमने. Earlier Kerala was too beautiful, but after these floods everything is being destroyed. So Kerala tourism, क्या उन्होंने प्लानिंग की? उन्होंने कहा कि हम फ्लाइट्स में ऑफ कर देंगे, जो फ्लाइट्स आएंगी ना हमारे यहाँ टूरिस्ट लेंगे, हम उसमें कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे. हम इंटरनेशनल इवेंट्स अपनी स्टेट में होल्ड करवाएंगे. जैसे मान लो कि कोई साइंस इवेंट है, कोई सेमिनार्स है, हम अपनी स्टेट में करवाएंगे ताकि इस बहाने से लोग हमारी स्टेट में आए. उन्होंने बोला हम यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटीज लॉन्च करेंगे ताकि टूरिस्ट को हम लाइक इनवाइट कर सके अपनी स्टेट में, सो दैट एक बार जब लोग जाएंगे फिर वो कहेंगे नहीं केरला तो फिर से वापस बहुत ब्यूटीफुल हो गया है, तो पीपल विल स्टार्ट कमिंग. सो 12 पॉइंट एक्शन प्लान वाज बीइंग मेड. 12 पॉइंट्स मैं नहीं लिखवा रही हूँ, आपको जस्ट आइडिया दे दिया. दैट इज द स्ट्रेटेजी व्हिच इज बीइंग मेड बाय केरला टूरिज्म. सो स्ट्रेटेजी इज आल्सो अ सिंगल यूज प्लान जो हम ये बना रहे हैं. When it is made for the particular situation, it is a single use plan. When it is focused on achieving the long term goals, तो जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उसको मैं इन दोनों के अंदर क्लासिफाई नहीं करा रही. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग. मोर ओवर आपको इसके ना वो भी लिखने पड़ेंगे कीवर्ड्स. आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? अगर क्वेश्चन में आगे आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है, तो हाउ विल यू बी एबल टू राइट? तो कीवर्ड्स लिखिए ऑब्जेक्टिव के, ऑब्जेक्टिव्स के कीवर्ड्स लिखिए पहले. रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट, अगर ऐसा लिखा हो रिटन स्टेटमेंट्स ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट्स या एंड रिजल्ट्स, तो दैट इज फॉर ऑब्जेक्टिव. ठीक है. और अगर स्ट्रेटेजी के कीवर्ड्स लिखने हैं तो ऐसा लिखा होगा इट इन्वॉल्व्स एनवायरमेंटल स्कैनिंग. जो करंट एनवायरमेंट चल रहा है उसको स्कैन करके जो बनती है वो स्ट्रेटेजी है. इट इन्वॉल्व्स एनवायरमेंटल स्कैनिंग. बाकी जो 3 पॉइंट्स बताए हैं वो तीनों भी कीवर्ड्स हैं स्ट्रेटेजी के अंदर वाले. उन तीनों में से कोई लाइन लिखी हो तो भी पता चल जाएगा. ठीक है बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लान. बट आपको एक बार इसको रिवाइज करके आना पड़ेगा. ठीक है, जस्ट गिव